किया था, हम लोगों ने कंप्लीट किया था, अपनी प्रेजेंटेशन डिस्कस की थी. नाउ यू गेट टू नो अबाउट, आप लोगों ने थोड़ा सा स्क्रीन कि मैं एक काम ये करती हूँ, शेयर स्क्रीन में हम रैंडम ले लेते हैं. Allow computer sound. Okay. Can you people see my screen? आप लोगों को दिख रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So waiting room. Allow admit. I think कुछ प्रॉब्लम आया है. ठीक है, अब तो सब आगे होंगे ना? सही है? ओके ठीक है. हम लोगों ने यहाँ पे अभी हम लोगों ने जो लेक्चर किया था कंडक्ट, उसमें हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ली थी. कैपिटल स्ट्रक्चर का किस तरीके से परफॉर्मेंस कंपनीज पे फर्क पड़ रहा है, उसको लेके हम लोगों ने किया था. ना आई वुड लाइक टू शेयर अ लिटिल वीडियो विद यू पीपल. ना थोड़ा सा इसको देखना. जस्ट गो अहेड विद दिस. इसकी वॉल्यूम आ रहा है सबके पास? The optimal capital structure shows the best Ma'am, balance of video debt call. to equity a Bye-bye. company can have in order to minimize its cost. सॉरी मैम आ रही है वीडियो की ऑडियो. हमारी ऑडियो आ रही है. ओके गो अहेड विद दिस वीडियो. The optimal capital structure shows the best balance of debt to equity a company can have in order to minimize its cost of capital, the rate it pays to use money, and maximize its market value. In essence, an optimal capital structure attempts to optimize a firm's cost of capital and the market value of its securities. There should be a judicious mix of short and long-term debt to help create lower overall cost of capital. The cost of debt is lower than the cost of equity because interest on debt is tax deductible. The cost of equity consists of the dividends a company pays to shareholders. Debt holders' claims to funds take priority over shareholders. Debt may be cheaper, but it also carries the risk of not being able to make payments on time, which can lead to bankruptcy. The company must find an optimal capital structure that minimizes the cost of financing and minimizes the risk of bankruptcy. Okay. Have you people seen the video? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कुछ समझ में आई और shall I play it once again? मैम समझ में तो आई है, लेकिन इसको इलैबोरेशन आप दे दें, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन. अच्छा देखो, हमारे पास थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ पे ओके जस्ट गो थ्रू द वीडियो वंस अगेन. लेक्चर को अपने दिमाग में रखो और एक थोड़ा सा वो करो, फिर उसके बाद हम दोबारा वो करते हैं. Balance of debt to equity a company can have in order to minimize its cost. The optimal capital structure, as we have discussed, company can have in order to minimize its cost of capital. यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो आपके पास कॉम्बिनेशन किस तरीके से बन रहा है. आपके पास to optimize a firm's cost of capital, minimize the firm's cost of capital by making sure कि आपके पास किस तरीके से आपके इंटरेस्ट की पेमेंट जा रही है, शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ती चली जाए. बहुत ज़्यादा आप लायबिलिटी बेस्ड भी अगर लोगे तो उसमें आपके पास प्रॉब्लम करेगा, और बहुत ज़्यादा आप इक्विटी बेस्ड करोगे तो उसमें शेयरिंग बहुत ज़्यादा होती चली जाती है. An optimal capital structure, market value of its securities, short term and long term debt, इन सब को आपको एक बैलेंस रखना होता है. कितना शॉर्ट टर्म लेना है, कितना लॉन्ग टर्म लेना है. लॉन्ग टर्म डेट्स कौन से होते हैं? जो आपके पास डिबेंचर्स जा रहे होते हैं. क्लियर? ओके. Long-term debt to help create lower overall cost of capital. The cost of debt is lower than the cost of equity because interest on debt is tax deductible. The cost of equity consists of the dividends a company pays to shareholders. Debt holders' claims to funds take priority over shareholders.
Okay, what was told in this particular debt was debt holders are given priority. ये भी चीज़ हम लोगों को पहले से पता है कि हमारे पास debt holders को priority दी जाती है, उनको interest की payments पहले दी जाती हैं instead of as compared to the shareholders. It may be cheaper, but it also carries the risk of not being able to make payments on time. So it always hold the risk of bankruptcy for the company. आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपके पास अगर इंटरेस्ट की पेमेंट ज़्यादा डिलेड होती हैं, अनफॉर्चुनेटली, जैसे इवन हम अगर आप लोगों को याद हो, वी हैव डिस्कस सो फार, हम लोगों ने कंपनी का स्ट्रक्चर को हमने कंट्री के पार्लियामेंट के और इन तमाम चीज़ों के एक कंट्री के स्ट्रक्चर पे भी अप्लाई किया था, रिमेंबर अप्लाई किया था, ठीक है ना? Yes. तो एक कंट्री के जब हमने कैपिटल उस पर अप्लाई किया था, और हमने एक बात ये कह रहे होते हैं कि कंट्री का भी कैपिटल जो है वो कंट्री की फाइनेंशियल वर्थ होती है, उसके मुताबिक उसके लोन्स मिल रहे होते हैं, यानी हमारी मुल्क की फाइनेंशियल वर्थ कितनी है, और एंड द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ डेट्स, ग्रेटर विल बी द रिस्क ऑफ बैंक्रप्सी। ये बात हम लोग जब बात कर रहे होते हैं ना कि फ्यूचर वॉर्स हमारे पास जो हैं वो आपकी बैंक्रप्ट इकोनॉमिक वॉर्स होंगी, यानी ये कि आप वॉरफेयर्स पे नहीं जा रहे होते, आपके पास आप वॉर्स के बजाय आप इकोनॉमिक वॉरफेयर पे बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक वॉरफेयर क्या है? यानी ये कि वंस यू हैव गिवन द लोन टू अ कंट्री एंड दे आर नॉट बीइंग एबल to pay back the amount, you can just bankrupt, you can just acquire or occupy a particular portion of that country as per the terms and conditions. तो आपके पास अभी लास्ट उसमें I don't remember the country name, either Sri Lanka or Singapore, one of them, इन लोगों के they were failed to, I guess Sri Lanka, they were failed to pay back the amount of their loans to a certain country, तो उसके नतीजे में उनका एक पर्टिकुलर पोर्शन एक्वायर हो गया था। तो यू नेवर नो कि फिर बैंक्रप्सी की सिचुएशन क्या जा रही होती है। एक चीज़ कभी कभार एक्विजिशंस हो जाते हैं, एक और उसके अगर वो ना भी हो तो इंटरनल केओस डेवलप हो जाता है। क्लियर है? Okay. Debt may be cheaper, but it also carries the risk of not being able to make payments on time, which can lead to bankruptcy. The company must find an optimal capital structure that minimizes the cost of financing and minimizes the risk of bankruptcy. Okay. Now, I would like to share another one. Let me see. Okay. Hold on. I'll share. Assalamualaikum. Capital structure. Effect of capital structure. Leverage ratio. Okay. ओके अभी हम लोगों ने ओके यू देयर कैन यू सी माय स्क्रीन नाउ? यस मैम। ठीक है, अच्छा अभी हम लोगों ने थोड़ा सा जो डिस्कस किया था वो हमारे पास ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका क्या इफेक्ट जा रहा होता है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर, ठीक है ना। अब इसको जब हम रिलेट कर रहे होते हैं तो हम लोगों ने एक बात ये की थी कि हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर जब आप ले रहे हो तो देखो एक चीज़ हमने बात की, उधर अपने अपने बेनिफिट्स ये तमाम बहुत अच्छे हैं, सब अपनी अपनी जगह पे हैं। हमने डेट बेस्ड फाइनेंसिंग का भी देखा, हमने इक्विटी बेस्ड फाइनेंसिंग का भी देखा, मगर इसमें अभी हमने ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो नहीं देखा। यानी ये कि एक बात जब हम लोगों ने पहले की थी और जब हम लोगों ने खासतौर पर एंग्लो अमेरिकन मॉडल भी हम डिस्कस कर रहे थे तो उस वक्त हम लोगों ने कहा था कि while selecting the liability based capital structure you have to be sure of your sales
ताकि आपको अपना ब्रेक इवन पता हो, अपना इकोनॉमीज ऑफ स्केल पता हो, आपका रिटर्न कंपनी में कितना आ रहा है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट की पेमेंट्स देनी है। अगर आप इंटरेस्ट की पेमेंट्स नहीं दोगे तो उसका बेनिफिट कुछ नहीं होगा, रादर यू विल फेस बैंक्रप्सी। ठीक है ना? तो एक तो ये सिनेरियो होता है कि आपने इंडस्ट्री क्या चूज की है, आपके पास नेचर ऑफ कमोडिटी क्या है एज पर द मार्केट, आपकी मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि अमेरिकन सिनेरियो में उन्होंने आपकी जो लाइक एफएमसीजी गुड्स हैं या कंज्यूमर गुड्स, कन्वीनियंस गुड्स हैं, वो तो लायबिलिटी बेस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर पे बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं, मगर जहाँ पे हम आपकी स्पेशलिटी गुड्स की बात कर रहे होते हैं, तो स्पेशलिटी गुड्स आपके लिए आसान नहीं होती, स्पेशलिटी गुड्स को लायबिलिटी बेस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर में, बिकॉज द अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल्स इज नॉट वेरी हाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज ऑफ कंज्यूमर्स इज नॉट वेरी हाई। उसके नतीजे में अगर आपके रिटर्न्स कंफर्म नहीं होते हैं तो आप क्या करते हो, आप रिस्क पे आ जाते हो। ठीक है, थोड़ा सा लेवरेज रेशियो को भी हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स द डिस्कशन कि हमारे पास ओवरऑल अभी का सिनेरियो क्या चल रहा है और फिर हम उनको किस तरीके से हम वर्कआउट करते हैं। ठीक है, Most companies rely on a combination of owner's equity and debt to finance their operations. A leverage ratio is any of several measurements that look at how much Most companies rely on a combination of owner's equity and debt to finance their operations. A leverage ratio is any of several measurements that look at how much capital comes in the form of loans or assesses a company's ability to meet financial obligations. Perhaps the most popular leverage ratio is the debt-to-equity ratio. The calculation is simple. Divide the company's total outstanding debt by the amount of shareholder equity. For example, Lenny's Office Supply Corporation has short-term debt of $50,000 and long-term debt of $25,000, which are divided by its shareholder equity of $75,000 to arrive at a leverage ratio of 1. If all other factors are equal between two companies, the one with the lower ratio is usually considered the safer investment. That's because highly leveraged firms will often have greater difficulty paying their interest and principal payments going forward. Typically, a debt-to-equity ratio above 2 indicates a relatively risky scenario for the investor. However, this yardstick can vary based on the industry. Businesses that require large capital expenditures may need to take out more loans than other companies. It's a good idea to compare a leverage ratio to the firm's past performance and to its competitors to better understand the data. Keep in mind that having too few IOUs can also raise questions. If a company's operations can generate a higher rate of return than the interest rate on its loans, then the debt is helping to build profit. A reluctance or inability to borrow may be a sign that operating margins are simply too tight. Okay, now, shall we get back? Okay, can you people hear me now? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे जब इस चीज़ को वो किया तो हम लोगों ने ये आपके पास वीडियो को हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, अब थोड़ा सा इस वीडियो में कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो? Yes, ma'am. इस वीडियो में किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम? मैम ये वीडियो का लिंक शेयर कर दें, अगर स्लाइड्स में है तो हमें देखनी पड़ेगी जो और उसके बाद अगर कोई अच्छा, बिलाल, यस मैम।
थोड़ा सा हम लोगों को ना ये हेलो हेलो मैम, यस मैम। बच्चे मैम आपकी आवाज कट गई है पूरी। एक्चुअली थोड़ा सा आई डोंट नो डिस्टरबेंस कहीं से आ रही है या कोई प्रॉब्लम मेकर जो है वो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। मैम अभी तक तो सबके माइक क्लोज हैं, सिर्फ आपका और मेरा खुला हुआ है, शायद बीच में कुछ आ रहा हो। उन लोगों को आर यू पीपल लिसनिंग, कैन यू पीपल लिसन द प्रॉब्लम? मैम इको आ रहा है काफी ज्यादा आपकी साउंड में पीछे। ओके, सबके माइक्स क्लोज हैं? ओके, अब आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है? यस मैम। ठीक, ओके इट्स बेटर। ओके ना, अब आ रही है क्लियर आवाज? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा देखो, हम लोग जब बात कर रहे होते हैं ये आप लोगों के पास वैसे तो वीडियो रिकॉर्ड भी हो गई होगी। जब आप लोगों ने जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तो उसी लेक्चर में जब हम लोगों ने स्क्रीन शेयर की है तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग में आपके पास वीडियो भी आ गई होगी, रिकॉर्ड हो गई होगी, है ना? यस मैम, ऑडियो भी होती है, वीडियो भी होती है। ठीक है, तो आप लोगों के पास ये ऑटोमेटिकली लेक्चर में इंक्लूड हो गई होगी वीडियो। यू कैन गो थ्रू द वीडियो अगेन एंड अगेन, ऑल्दो इट डज नॉट कंटेन एनी न्यू फैक्ट्स। हम लोगों ने वही जो चीज़ें हम लोगों ने बात की है, थोड़ी सी हम लोगों ने एक थोड़ी डिफरेंट व्यू शेयर करने के लिए हम लोगों ने वो दोबारा वो कर ली थी, मगर वो वही बात कर रहे हैं क्योंकि सही है, जब हम डेट टू इक्विटी रेशियो को लेके काम कर रहे होते हैं तो उस सूरत में हमारे पास डेट टू इक्विटी रेशियो में हमारे पास जो है वो आप ये देख रहे होते हो कि हमारे पास किसी भी कंपनी का डेट किस हद तक दिया हुआ है। इफ डेट टू इक्विटी रेशियो या लेवरेज रेशियो हमारे पास if that is greater than 2, that might be the more risky firm as compared to those having the low डेट टू इक्विटी रेशियो। तो एक चीज़ ये, अच्छा ये तो हम लोग बात कर रहे थे जनरल कंपनीज के ऊपर और सिनेरियो के ऊपर, कंपनीज को देखते हुए। अब जो हमने इसको जब हम रिलेट करते हैं नेचर ऑफ कमोडिटी के साथ और उसके अलावा हम रिलेट करते हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो के साथ, ठीक है ना? पीछे मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो, मैक्रो एनवायरमेंटल एनालिसिस हमारा करने का मकसद ये था कि हम लोगों के पास कहीं पे भी ये प्रॉब्लम तो नहीं आ रही कि जो है लाइक आपके पास जो पूरा ओवरऑल इकोनॉमिक सेक्टर है वो डाउनफॉल पे जा रहा है। एक बात जो हम रिस्क की बात करते हैं वो ये कि एक तो ये कि सेल्स आपकी कंफर्म होनी चाहिए, मगर अगर ओवरऑल डिप्रेशन आया हुआ, जैसे इस वक्त हम बात कर रहे हैं, इस वक्त डिप्रेशन ओवरऑल मार्केट में है, इजंट इट? ठीक है ना? तो उस सूरत में अगर मैं उधार लेके या लायबिलिटी के इस्तेमाल करते हुए, डेट्स को इस्तेमाल करते हुए, बोरोड मनी के साथ मैं काम शुरू करती हूँ, so probably I won't be able to pay back, make the payments within the next 1 year, next month or something like that। हो सकता है मैं शायद इंटरेस्ट की पेमेंट्स ना कर पाऊँ, प्रिंसिपल तो बहुत दूर की बात है। तो अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑयल सेक्टर की बात कर रही थी, हम ऑयल सेक्टर की बात करें तो ऑयल सेक्टर अपरेंटली इनिशियली, शायद मैं अभी 6 months बैक मैं कोई ऑयल कंपनी का काम कर रही होती हूँ, ऑयल का काम कर रही होती हूँ, ऑयल से रिलेटेड, तो उस सूरत में हो सकता है मैं 100% लायबिलिटी को भी लेके, अगर मैं उधार लेके और मैं अपने कोई कुओं के माइनिंग का काम हुआ या कोई पेट्रोल पंप्स का काम हुआ, तो हो सकता है 100% लायबिलिटी पे भी अगर मैं काम करती तो शायद मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था कि मैं इंटरेस्ट रेवेन्यूज जनरेट करती और मैं उनको पे बैक कर देती। मगर क्या वही सिनेरियो अभी भी है? और वो कंपनीज जिन्होंने अगर लायबिलिटीज लास्ट ईयर में ली हैं और अभी उन्होंने अपनी पुरानी लास्ट उसमें उन्होंने अपनी नहीं वो की हैं, पे बैक नहीं किए हैं, तो उस सूरत में हमारे पास क्या है? हमारे लिए प्रॉब्लम है। हमारे पास वो कंपनीज ऑटोमेटिकली क्या हो गई हैं? वो कंपनीज हमारे लिए
वो कंपनीज हमारे लिए क्या हो गई हैं, अब हमारे पास वो कंपनीज अपना सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस को बरकरार नहीं रख सकती। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. अच्छा, जो है ठीक है, एक वैसे हम लोग एक थोड़ा सा हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हमारे पास ना एडमिट करते वक्त हम लोग बिलाल, हम लोग जो क्लास में एडमिशन का ऑप्शन है ना, अब्दुल हमीद खान, अब्दुल हमीद खान, ये अभी तक क्लास में नहीं थे? जरा सा मैम नेक्स्ट ये टाइम। थे। अच्छा, ये पानी वाला बन के तो नहीं आए हुए थे? नो मैम, नो मैम, अब्दुल अच्छा हमीद खान नहीं थे। अच्छा, आर यू श्योर? मैंने अभी एक पानी वाले को किक आउट किया क्लास से। मैम ये हो सकता है कि कोई और हो, लेकिन ये अब्दुल हमीद खान तो नहीं थे। ओके, अच्छा चलो, थोड़ा सा हमारे लिए वो बॉदरिंग तो होगा, मगर मेरा ख्याल में ज़्यादा बेहतर यही है कि हम लोग जो है वो एडमिशन का ऑप्शन जो है वो हम अपने पास रखें, ताकि हमें ये Okay, जो XYZ लास्ट टाइम कौन थे, कोई कमलेश थे, यस मैम। है ना, और इस वीक ताकि हमारे पास जो भी आ रहा है वो हमारे पास जो भी नाम के साथ अपना आ रहा है, क्लास के नेम्स के साथ, वही मौजूद हो। या तो मैं एक काम करूँगी, ये एंट्री का राइट मैं आप लोगों में से किसी के, आपको बिलाल आप ही को दे दूँगी, ठीक है ना, अलाउ एंट्रेंस का। ओके मैम। तो उसमें होगा हमारे पास बेनिफिट ये कि यू नो द नेम्स ऑफ ऑल द क्लास पीपल, तो आप उसी को अलाउ करोगे जो हमारे पास क्लास में मौजूद रहा है, ठीक है, ओके क्लास का मैम। एक्चुअल वो है, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस ये जो हमारे पास स्क्रीन भी थ्रू आउट कोई ड्राइंग खेल रहा था, थोड़े काम कर रहा था, तो हमारे पास ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। ऑलरेडी वैसे ही हमारे पास जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग। एक और चीज़ थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि देखो इस वक्त वैसी एजुकेशन के सिनेरियो पे बड़ा जवाल आया हुआ है। आप लोगों का होपफुली मेजॉरिटी तो आप लोगों की क्लास की अच्छी सेंसिबल लोग हैं, मगर उसके बावजूद अगर इस किस्म का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका मतलब किसी ना किसी के स्टिल जो है वो सेंसिबिलिटी कंफर्म नहीं है, और उसको ये अभी तक वो नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आगे ये चीज़ें अपने फ्यूचर पे कैसे इफेक्ट करेंगी। ओके, गेट बैक टू द लेक्चर। हमारे पास लाइक हम लोग बात कर रहे थे कैपिटल स्ट्रक्चर को, सिनेरियो को लेके, ऑयल कंपनीज को लेके हम बात कर रहे थे। वहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो? हेलो? No, ma'am. ठीक है। अच्छा, नाउ यू पीपल कैन, whoever wants to keep their mics open, they just can keep their mic open। हमारे पास थोड़े से 15 to 20 मिनट्स हैं, लेक्चर हम लोग कंडक्ट कर चुके हैं। अब इसमें क्या है, आप लोग अपने अपने सेक्टर को, लास्ट टाइम भी हमने थोड़ा सा सेक्टर वाइज आपका वो किया था, नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं लेक्चर की जो है वो एक पार्ट की मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूँ, और बाकी डिस्कशन बेस्ड में हम लोग यहाँ पे क्लास में आ जाएं। अब मुझे आप लोग अपने अपने सेक्टर को लेके, आप लोगों ने अभी तक अपने सेक्टर को अंडरस्टैंड कर रहे हो, पढ़ रहे हो, आपने एनालाइज किया, इवैल्यूएट किया, ठीक है ना। एक ओवरऑल सेक्टर एनालिसिस है। हमने जैसे लास्ट टाइम पे डिस्कस कर रहे थे, हमने कहा था कुछ सेक्टर्स ऊपर गए हैं, 100% कोई भी सेक्टर ना उरूज पे जाता है ना जवाल पे जाता है, ठीक है ना। यानी ये कि जैसे हम लोगों ने लास्ट वीक हम फूड कमोडिटीज़ को लेके बात कर रहे थे, और हमने कहा था सर्टेन फूड कमोडिटीज़ हैव एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डिमांड, whereas certain food commodities जिसमें हम लोगों ने टोटली इलास्टिक कमोडिटीज़, आपकी कन्फेक्शनरी आइटम्स हुए, बच्चों के जो टारगेट मार्केट के स्कूल लंच और ये तमाम चीज़ें, स्नैक्स हैं, इन तमाम चीज़ों की हमने बात की थी कि इनकी ओवरऑल मार्केट क्या हुई है, डाउन पे आई है, Decrease हुई। डिक्रीज हुई है, ठीक है ना। अब हम लोग जब बात कर रहे होते हैं, अगर मैं बात कर रही हूँ क्लोथिंग की, तो क्या हमारे पास ओवरऑल क्लोथिंग सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर ऊपर गया या पूरा डूबने के करीब है? मैम बिल्कुल डूबने के करीब तो नहीं है, बिकॉज अभी भी जो है वो चल रहा है, मतलब एकदम बंद नहीं होता। अच्छा, बट टेक्सटाइल ये है सेक्टर, कि आई मैम गेस टेक्सटाइल सेक्टर ने तो वो डिजिटलाइजेशन की तरफ आ गए, तो ऑनलाइन शॉपिंग एंड ऑनलाइन अच्छा डिलीवरी की देखो, वजह से एक वो और काफी मेरे, ज्यादा। हाँ एक और बच्चे मेरी थोड़ी सी चीज़ों को ज़रा सा बात को समझना। देखो वो पर्टिकुलर जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं ना,
तो ई कॉमर्स में कुछ चीज़ें होती हैं जो प्योर डिजिटल प्रोडक्ट्स पे बात करते हैं, और कुछ कंपोनेंट्स, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो डिजिटलाइज हो सकते हैं। लाइक अगर मैं सर्विसेज की बात करूं तो हम उनको डिजिटलाइजेशन की तरफ ले जा सकते हैं। उसकी वजह ये है कि सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं। अब व्हाट आई एम गिविंग टू यू, आई एम राइट नाउ डिलीवरिंग अ सर्विस, है ना? तो हमने उसको Yes, ma'am. डिजिटलाइज कर दिया है, हम उसको लेकर आ गए हैं। मगर जहां हम फिजिकल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, फिजिकल कमोडिटीज की, तो उनमें हम जो मार्केटिंग सर्विस है या सेलिंग सर्विस है, इन तमाम चीज़ों को तो डिजिटलाइज कर सकते हैं, मगर एक्चुअल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कभी भी डिजिटलाइज नहीं हो सकती। ठीक है ना? क्लोथिंग में मार्केटिंग सर्विसेज, डिलीवरी सर्विसेज, बहुत सारी चीज़ें काफ़ी हद तक वो, मगर जहाँ फिजिकल प्रोडक्ट है तो वहाँ डिलीवरी भी आपकी टेंजिबल होगी। अच्छा, अब यहाँ पे जब मैं टेक्सटाइल सेक्टर की ओवरऑल बात कर रही हूँ, जो आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हो ना, वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किसकी है? मार्केटिंग सर्विसेज की। मार्केटिंग की। हाँ, टेक्सटाइल की प्रोडक्शन की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो क्या है? क्या हमारे पास डिक्रीज पे आई है या वो हमारे पास इंक्रीज पे आई है या कंसिस्टेंट रही है? मैम कंसिस्टेंट तो नहीं, आई थिंक थोड़ा सा डिक्रीज की तरफ तो जो है वो डेफिनेटली आया होगा। अब क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है तो इसको मैं एक एंडिंग नोट पे लेकर आ जाती हूँ। नेक्स्ट टाइम से हम कोशिश ये करेंगे कि वीडियो लेक्चर की मैं एक अलग दूंगी और हम ओवरऑल पूरा का पूरा जो ये घंटा 1.5 घंटा है इसको हम लोग डिस्कशन पे मैक्सिमम लेकर आएंगे सेक्टर वाइज। अपने अपने सेक्टर पे काम करके रखिएगा, ठीक है? इस लेक्चर को भी मैं एक थोड़ा सा सेपरेट रिकॉर्ड करके और मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। यू कैन गो थ्रू द लेक्चर अगेन, उसको थोड़ा सा अपने ऊपर इवैल्यूएट कीजिएगा, एनालाइज कीजिएगा, देन यू कैन वर्क अहेड विद इट। आप अपनी जो फाइल वर्क है उसमें इनकॉर्पोरेट करो, अपने सेक्टर को इनकॉर्पोरेट करो। नाउ ओवरऑल सेक्टर की देखो, जब हम बात कर रहे होते हैं तो ओवरऑल सेक्टर का सिलसिला ये है कि फूड सेक्टर में हमारे पास कहानी ये है कि हमने कहा हेल्दी फूड्स की डिमांड। ओके मैम, एक मिनट रुकना, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? मैम आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। अब आ रही है? यस मैम। जी मैम अब आ रही है। यस मैम, क्लियर है। हेलो, अब आ रही है? यस मैम। यस मैम अब आ रही है। ओके, अच्छा देखो, हम लोग जब बात कर रहे हैं थोड़ा सा, अब मैं हम लोग लास्ट उस पे थे कि हमारे पास ये कायनात बशीर वगैरह, बच्चे ट्राई टू बी ऑन टाइम नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि हम लोगों ने जब ये बात कर रहे हैं ना कि हमारे पास एंट्री हम लोग थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड रखेंगे, तो उसमें अगर आप बीच बीच में आओगे तो अच्छा आप लोगों का लाइट वाइट का, मगर बीच में आप लोग थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, कोशिश कीजिए। लास्ट 10 मिनट्स में आप लोग क्या वो करोगे? ओके, ठीक है। कभी कभी बीच Disconnect हो क्लास जाता है, में कॉल exactly. कट जाती है, डिस्कनेक्शन हो ठीक जाता है। ठीक, ओके। यस अच्छा देखो, हमारे पास क्या है, हमारे पास जब हम लोग बात कर रहे हैं फूड सेक्टर की, तो हमने फूड सेक्टर पे कहा था कि हमारे पास कभी कुछ कमोडिटीज़ को लेके डिमांड बढ़ी है, यानी ये कि हम हेल्दी फूड्स की बात कर रहे हैं, हम विटामिन सी बेस्ड फूड्स की बात कर रहे हैं, हमने कुछ हर्ब्स की बात की, तो इन तमाम चीज़ों में फ्रूट्स की बात की। फ्रूट्स की डिमांड लास्ट डेज में बहुत इंक्रीज हुई है, ठीक है ना? दैट would somehow decline due to either expensive fruit sector or whatever so now, ठीक है? रॉ फॉर्म में ज़्यादा आ रहा है या आप उसमें जो जंक फूड है उसकी हमने कहा डिक्लाइन पे चली गई, जितना ज़्यादा हेवी जंक है वो उतना ज़्यादा और डिक्लाइन पे चला जाता गया। अच्छा, इसी तरीके से जब हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो टेक्सटाइल सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो आप टेक्सटाइल सेक्टर को तो आप पूरा ओवरऑल डिक्लाइन पे नहीं लेके जा सकते। टेक्सटाइल सेक्टर में ही तो आप लोगों की आ रही हैं प्रोटेक्टिव गियर, प्रोटेक्टिव किट्स, गाउन्स, मास्क, आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आ रहे हैं या नहीं आ रहे? जी मैम। ठीक है ना? Two or three can leave your mics open.
क्योंकि हमारे पास लास्ट के ही हमारे पास आ रहा है 6-7 मिनट्स हैं, तो हम इसको फिर ये कि मैं अगर आपके आंसर का वेट करूंगी तो और टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप लोग अपने माइक्स बेशक ऑन छोड़ दो ना 2-3 मिनट तक के लिए। गेटिंग माय पॉइंट। अब यहाँ पे जब आप टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बात कर रहे हो तो टेक्सटाइल सेक्टर में हमारे पास क्या है, टेक्सटाइल सेक्टर में हमारे पास अगर इफ यू हैव द एबिलिटी टू शिफ्ट द कंपनी, अब यानी अगर मैं ओवरऑल क्लोथिंग सेक्टर की बात कर रही हूँ और हाई प्राइस क्लोथिंग सेक्टर की बात कर रही हूँ, तो हाई प्राइस क्लोथिंग सेक्टर में तो हमारे पास क्या सिलसिला है, हाई प्राइस क्लोथिंग सेक्टर में तो डिक्लाइन आया ही आया है। अब उन्होंने अगर अपना कैपिटल स्ट्रक्चर लायबिलिटी बेस्ड रखा हुआ है या इक्विटी बेस्ड रखा हुआ है तो उस डिक्लाइन की नौयत और स्ट्रांग हो जाएगी। अच्छा, एक चीज बाकी है कि स्ट्रेटजी, अगर कोई कंपनी अपने स्ट्रेटजी दे हैव द कैपेबिलिटी टू अडॉप्ट द macro environmental changes and adapt themselves according to the changes, तो वो तो बेस्ट है। यानी अगर एक कंपनी है और वो इमीडिएटली स्विच कर जाती है, अपना फोरसीन करती है आगे के सिनेरियो को और उसके मुताबिक वो अपनी प्रोडक्शन को स्विच कर जाती है। जैसे लेट्स से अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे हमारे पास टेक्सटाइल कंपनीज ने इमीडिएटली उन्होंने मास्क की मैन्युफैक्चरिंग, अब आप इस इंतजार में रहो कि नहीं जी हमारे पास टॉवल या बेडवेयर्स या इन तमाम चीज़ों की डिमांड है या नहीं है, या उसकी डिमांड तो कम हुई है, तो फिर तो आप बैठे रह जाओगे। एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जब आप बात करते हो तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है ही यही, द एबिलिटी टू अडैप्ट योरसेल्फ एज पर द चेंजिंग सिनेरियो। तो जिन्होंने, जिन कंपनीज ने चेंज किया है, सेक्टर्स ने, जिन्होंने सेक्टर ओवरऑल कितना, एक चीज सेक्टर ओवरऑल, पहले आप बात करते हो ओवरऑल सेक्टर पूरा डूब रहा है या ओवरऑल पूरा सेक्टर नहीं डूब पा रहा है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, रिक्रिएशन है, टूरिज्म है, सही है, रिक्रिएशन है, टूरिज्म है, तो उस सूरत में हमारे पास जो है, ओके होल्ड पे, वी हैव टू होल्ड अ लिटिल बिट ना। ज्वाइन करूंगी, ज्वाइन मीटिंग पे मैंने अभी तो नहीं शुरू हो रही है, टाइप पे वो जाए ना व्हाट्सएप पे, ओके जिया खाला के व्हाट्सएप पे जाए वहां से। ओके 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 एमएम ताहिर, देयर इज समवन बाय चार्ज कर ले। अनुषे माइक म्यूट कर दो प्लीज। ओके ओके नाउ ठीक है। जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, नाउ वी विल जस्ट वाइंड अप द लेक्चर्स। इन केस इफ यू हैव एनी क्यूरीज वी कैन कंटिन्यू इट द नेक्स्ट वीक। आप लोग अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अभी मैंने जितनी बात की है यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई इशू, किसी को कोई प्रॉब्लम? यस मैम। ठीक है ना। एक हमने बात की कि ओवरऑल सेक्टर कितना डिक्रीज पे आ रहा है अभी। अच्छा, हम लोगों ने बात की, हमने कहा फूड सेक्टर टोटल 100% डिक्रीज पे नहीं है, डिक्लाइन पे नहीं है। क्लोथिंग सेक्टर ओवरऑल पूरा डिक्लाइन पे नहीं है। जब हम अलबत्ता टूरिज्म की बात करते हैं तो टूरिज्म अनफॉर्चुनेटली हमारे पास क्या है, टूरिज्म या उसको जब हम लोग रिक्रिएशन सर्विसेज की बात करते हैं तो ये ओवरऑल जैसे लेट्स से सिनेमाज हैं या फिर पार्क्स हैं, दे आर नाउ बाउंड बाय द गवर्नमेंट टू रिमेन क्लोज। तो इन दैट केस दे वोंट बी एबल टू परफॉर्म वेल ना। ठीक है, अब उसमें कहाँ पे कौन किस तरीके से अपनी उसको जो एसेट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको डाइवर्ट करके बेनिफिशियल से उसकी तरफ लेके जाता है या नहीं लेके जाता।
कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या इम्पैक्ट आएगा? जाहिर है अगर आप सेल्स नहीं कर पा रहे हो, अपनी वर्किंग नहीं कर पा रहे हो, तो उस सूरत में हमारे पास जो आपका इमीडिएट कंपनी है उसका कलैप्स ज़्यादा एक्सपेक्टेड है अगर आपका लायबिलिटी बेस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर है. एनी प्रॉब्लम नाउ क्लास? बस लास्ट मिनट है तो देन वी विल फाइंड, हम लोग बस वाइंड अप करेंगे. मैम आई हैव अ क्वेश्चन. बोलो. Ma'am, there is a student of her class. She is taking the company International Steel now. So the company name is International Steel. तो वो ले सकती हैं? Company name is International Steel. रबाब. Yes, ma'am. आप मुझसे क्या पूछ रहे हो अभी? ये चीज लेक्चर से रिलेटेड है? नो मैम, ये क्वेश्चन है अभी आपसे, अभी क्लास चल रही थी तो इसलिए मैंने अभी पूछ लिया. अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये तो मुझसे मैसेज पे पूछ लेना, आई डोंट माइंड. ठीक है, क्योंकि अभी Okay, बिल्कुल ma'am. लास्ट मिनट है, तो मैं इस वक्त कोई अगर क्यूरी हो तो मुझसे वो डिस्कस कर लें. ओके मैम, ओके. ठीक है.